ट्रेडिशनल साड़ी, राइट? एंड आप सबको समझ में आ गया होगा कि इस बार का मंथली फेलोशिप बहुत यूनिक होने वाला है। जिस तरीके से मैं इस कुएं में से पानी निकाल रही हूँ, वैसे ही इस बार के मंथली फेलोशिप से बहुत कुछ निकलने वाला है। एंड यू विल बी हैप्पी टू नो द थीम ऑफ आवर मंथली फेलोशिप इज फेसिंग द जायंट्स, राइट? सो लेट्स स्टार्ट आवर मंथली फेलोशिप विद अ प्रेयर। जय जिशु। दिशारी के मंथली फेलोशिप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फेलोशिप स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, तो चलिए आंखों को बंद करते हैं। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता कि हम इस विपरीत समय पर भी एकजुट हो पाए हैं ताकि आपकी स्तुति और प्रशंसा हो पाए। आज के फेलोशिप को आपके चरणों पे समर्पण करते हैं प्रभु। आप आशीर्वाद करें और हमारे कानों को और हृदय को खोल दें ताकि हम वचन ग्रहण कर पाए और इस वचन से हमें बुद्धि और बल मिले। हम विशेष करके उस परिवारों के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे प्रभु जो आर्थिक संकटों से और बीमारियों से जूझ रहे हैं। हमें यकीन है कि जीवित परमेश्वर के नाम से उन्हें ज़रूर चंगाई मिलेगी। और प्रभु हमें मदद करें ताकि हम मन फिरा पाए और अपने गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांग पाए। आशीर्वाद करें सारे दिन के लिए, सारे दिन को आपके चरणों पे समर्पण करते हैं। इस छोटी सी निवेदन प्रार्थना को स्वीकार करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। नहीं, इस बार फेलोशिप में सॉन्ग्स मैं नहीं करूंगी और ब्रदर अनम भी नहीं करेगा, तो कौन करेगा? उसके लिए आपको खुद देखना पड़ेगा। জয় শ্রী সকলকে। আমার নাম সমক্রম ভট্টাচার্য, আমি কলকাতায় থাকি। আমি একটা স্টুডেন্ট। আমি বিশ্বাস করি আমরা সকলে ঘরে আছি, ভালো আছি, সুস্থ আছি। এবং প্রথম গানটা আমরা সকলে জানি, না তো বল সে না তো শক্তি সে पर तेरे आत्मा के द्वारा। এই গানটার মাধ্যমে দিয়ে আমরা সকলে হয়তো শিখি, আমিও শিখেছি যে আমাদের বলের দ্বারা বা আমাদের বুদ্ধির দ্বারা আমরা কোনো পাহাড়কে, কোনো ঝড়কে থামাতে পারবো না, কিন্তু আমরা তার আত্মার দ্বারা সেই পাহাড়কে হাঁটাতে পারবো, সেই ঝড়কে থামাতে পারবো। আসি আমরা এই সকলে এই গানটা করি একসাথে। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरे आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरे आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ हट जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा पर तेरे आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरे आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरे आत्मा के द्वारा। ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा पर तेरे आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरे आत्मा के द्वारा, पर तेरे आत्मा के द्वारा, पर तेरे आत्मा के द्वारा। তো আসি আমরা এই সময় আরাধনার মধ্যে যাব। আরাধনা মানে শুধু কোনো গান না বা শুধুই কোনো প্রার্থনা না, আর শুধুই কোনো স্তুতি করা না,
কিন্তু তাকে হৃদয় সিংহাসনে কর্তৃত্ব ভার দেওয়া, যেন তিনি আমাদের লাইফে ইন্টারফেয়ার করেন, যেন তিনি আমাদেরকে চালনা করেন। তাকে ধন্যবাদ দেওয়া হলো আরাধনা। তো আসি আমরা এই সময় নিজের হৃদয়কে প্রস্তুত করি তার আরাধনা করার জন্য। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तुझसे
যদিও বা আমরা পাপী তাপে মানুষ পিতা প্রভু, তোমার উপস্থিতির মধ্যেও আমরা আসতে পারি না প্রভু, কিন্তু তুমি আমাদের কাছে আসো পিতা প্রভু। যখনই আমরা ডাকি পিতা প্রভু, তোমার সে পবিত্র উপস্থিতি তুমি আমাদের মধ্যে দান করো পিতা প্রভু। বিশ্বাস করি তুমি আমাদের মধ্যে এখনো তোমার উপস্থিতি দান করেছো পিতা প্রভু, সকলের হৃদয়ের মধ্যে পিতা প্রভু। এবং তোমার উপস্থিতি আমাদের জীবনে শান্তি দান করে পিতা প্রভু। এই অশান্ত পৃথিবী থেকে তোমার উপস্থিতি আমাদেরকে শান্ত দান করে পিতা প্রভু। ধন্যবাদ দিই পিতা প্রভু। পিতা প্রভু, আমাদের জীবনে পিতা প্রভু সাহায্যকারী ঈশ্বর একমাত্র তুমি পিতা প্রভু। হ্যাঁ পিতা প্রভু, ধন্যবাদ দিই। যখন আমাদের যা কিছু দরকার হয়েছে পিতা প্রভু, তুমি আমাদের দিয়েছো, তা দান করেছো পিতা প্রভু। ধন্যবাদ দিই। মহান প্রভু, আমার কাছে প্রার্থনা করি পিতা প্রভু, আমাদের প্রত্যেকের জীবনের জন্য পিতা প্রভু, আমাদেরকে তোমার করুণায় রেখেছো পিতা প্রভু, তাই ধন্যবাদ দিই। তাই আমাদের কোনো করুণা ছুঁতে পারিনি পিতা প্রভু। আমি বিশ্বাস করি আমাদের প্রত্যেক ভাই বোনদেরকে তুমি সুস্থ রেখেছো পিতা প্রভু। প্রভু, প্রার্থনা করি এই সময় তোমার আত্মার শক্তিতে পিতা প্রভু, এই করুণাকে পিতা প্রভু তোমার যিশুর নামে তুমি ধ্বংস করো পিতা প্রভু। প্রভু, প্রত্যেকের জীবনে তোমার করুণায় ভর্তি করে দাও পিতা প্রভু, আর কোনো করুণা না ধরতে পারে কাউকে পিতা প্রভু। প্রভু, তুমি আমাদের হৃদয় সিংহাসনে কর্তৃত্ব ভার তুমি গ্রহণ করো পিতা প্রভু, তুমি আমাদের চালাও পিতা প্রভু। তোমার ইচ্ছায় আমাদের জীবন পূর্ণ করো। তুমি আমাদের লাইফে ইন্টারফেয়ার করো পিতা প্রভু। তুমি আমাদের ডিসিশন নিতে সাহায্য করো পিতা প্রভু। প্রার্থনা করি প্রত্যেকের জীবনের জন্য পিতা প্রভু, তোমার আশীর্বাদে ভরে দাও পিতা প্রভু। বিশ্বাস করি তুমি আমাদের প্রার্থনা শুনেছ। যিশুর নামে চাইছি, তুমি শোভনের কার্য করো। আমেন। জয় যিশু। Thank you Samarpan. Really, we all enjoyed this song and I know आप बहुत curious हो and excited हो इस बार मंजू क्या स्पेशल लाने वाली है। So किस बात की वेट करें, चलिए चलते हैं उसके पास। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। जी हाँ, यीशु न कभी छोड़ा था और ना कभी छोड़ेगा। चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आए, यीशु हमेशा हमारा साथ देगा। आज बहुत कोई बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, लेकिन इस समय है हम एक दूसरे को उत्साहित करें, एक दूसरे का साथ दें और साथ ही साथ इस वक्त हम अपने परिवार के लिए, गांव के लिए, देश के लिए दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि यीशु हमारे इस देश को सलामत रखेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे खड़गपुर की कुछ लड़कियां इस दुआ को डांस कर दे रहे हैं। दुनिया मेरी है बदल रही, जैसा कल था वैसा होगा नहीं, खौफ से है भरा इंसान हर कोई, सारे सपने बिखरे हर कहीं, पर ये
जलाए रोशनी आओ मिलकर हम तोड़ेंगे हर जंजीर एक होकर सारे जीतेंगे हम सभी वाह, कितना सुंदर डांस था। पर्सनली मैं तो बहुत इनकरेज हुई इस गाने से। जी हाँ दोस्तों, जंजीर टूटेगा, लेकिन ये एकमात्र संभव है जब हम सब एक होंगे और जब हम एक होकर इसका मुकाबला करेंगे। हम आपके साथ हैं, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। जी दोस्तों, आपके लिए। यदि आपको दोबारा गाना सुनना है तो नीचे कमेंट लाइन पे इसका लिंक दिया गया है, आप इसमें जाके दोबारा गाना सुन सकते हैं। और अगर प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, और यदि आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ कांटेक्ट नंबर भी दिया गया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सबों को जय मसीह की। देखा इस बार मंजू कितना कुछ स्पेशल लेके आई, एंड आई होप कि आप भी बहुत इनकरेज्ड हुए हो। हमें पता है कि जल ही जीवन है, वाटर हमारे सर्वाइव के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही एक ऐसे क्राइसिस एंड जायंट जैसे सिचुएशन में होप एंड पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है। और इसी टॉपिक में हमें और भी विस्तार में बताने के लिए आ रहे हैं बहुत ही यंग, अ वेरी गुड गिटारिस्ट एंड हैंडसम, वाइब्रेंट, हम्बल, प्रेजेंटली ही इज अ CCC स्टार। लेट्स वेलकम ब्रदर प्रदीप मिल्स। Good evening, friends. The famous writer and motivational speaker Zig Ziglar says, most of the problems in life are because of two reasons. We act without thinking or we keep thinking without acting. Zig Ziglar ने ये कहा है कि हमारे जीवन में ज़्यादातर समस्याएं दो कारणों से होती हैं। हम बिना सोचे समझे काम करते हैं या हम बिना काम किए सोचते ही रहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो हमारे जीवन में समस्याएं दो कारणों से आती है। हम सिर्फ सोचते ही रहते हैं और कोई सॉल्व करने के लिए कोई स्टेप्स नहीं लेते, या बिना सोचे समझे हम कोई भी स्टेप लेते हैं सॉल्व को करने के लिए। और यही समस्याएं हमारे जीवन में धीरे धीरे एक परेशानियां या चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स एक दायित्व या एक जायंट्स का रूप ले लेती हैं। और ये जायंट्स धीरे धीरे हमारे जीवन को कमज़ोर करते हैं, खोखला करते हैं और हमें पराजित कर देते हैं। तो ये प्रश्न उठता है कि क्या है ये जायंट्स, क्या है ये दैत्य। ये जायंट्स हो सकते हैं किसी तरह का इनसिक्योरिटी, you might be feeling insecure about your relationship। आप शायद इनसिक्योर हैं एज ए गर्लफ्रेंड, एज ए बॉयफ्रेंड, अपने करियर को लेके। आप शायद सोचते हैं या आप चिंतित हैं या आप भयभीत हैं कि इतने पढ़ाई करने के बाद भी क्या मुझे एक अच्छा जॉब मिलेगा, क्या मेरे लिए एक अच्छा करियर रहेगा। आप सोच सकते हैं, आप हो सकता है कि ऐसे जायंट्स को आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं जो आपको कभी सोने नहीं देता। आप इतना चिंता करते हैं अपने परिवार के लिए और किसी तरह का लस्ट, किसी तरह का एडिक्शन, और ये जायंट्स धीरे 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 आपके जीवन को कमज़ोर और खोखला बना दे रहा है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब ये जायंट्स हमारे जीवन को खोखला और कमज़ोर बनाए तो हम जानें कि हमें इनका सामना करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आज के इस विषय पे हम देखेंगे, सुनेंगे और जानेंगे कि इट्स ऑल अबाउट फेसिंग आवर जायंट्स। हाँ, हमें अपने जायंट्स का सामना करना है और इसके लिए हम लोग 3 मुख्य विषय पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहला विषय है रिकॉग्नाइज दैट वी ऑल हैव जायंट्स। यह मान लेना कि हम सबों के जीवन में जायंट्स हैं।
शायद आप सोचते होंगे कि आप ही एकमात्र हैं जो अपने फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर हैं। क्या आप ही एकमात्र हैं जो सोचते हैं कि क्या होगा मेरा फ्यूचर इस लॉकडाउन के बाद, क्या होगा, किस तरह से फिनेंशियली हम लोग सर्वाइव करेंगे। पर मेरे प्रियो, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि हम सब, वी ऑल आर इक्वल इन फेसिंग द जायंट्स। हम सबों के जीवन में वो जायंट्स हैं और ये जायंट्स बहुत कॉमन है। ऐसा नहीं है कि केवल जो मिडिल क्लास फैमिली से है या लोअर क्लास फैमिली से है उनके जीवन में है और रिच क्लास के लिए नहीं है, बट हर एक इंसान उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जाता है जिसके द्वारा वो उस जायंट्स को फेस करता है। सो यू आर नॉट अलोन माई फ्रेंड। आप अकेले नहीं हैं जो आप इस दुविधा और इस संकट में की परिस्थिति से आप जाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि ये जायंट्स को हम सोचते हैं कि ये जायंट्स हमारे जीवन में कुछ समय के लिए है, पर रियलिटी है कि ये जायंट्स हर समय हमारे जीवन पे रहेगा। अगर आप स्कूल या कॉलेज में डरते थे कि शायद आपका एग्जाम का रिजल्ट क्या होगा, तो वह डर आपके शादीशुदा जीवन में और आपके फ्यूचर में भी वो अफेक्ट करेगा अगर आपने उस चीज़ को ओवरकम नहीं किया। अगर आप टू मच वरी होते हैं, अगर आप ज़्यादा आप चिंतित रहते हैं किसी विषय को, अगर आप लस्ट की परेशानी से गुजर रहे हैं, अगर आप किसी एडिक्शन से जा रहे हैं या किसी ऐसे इंसान से रह रहे हैं जिसे आप प्यार या स्वीकार नहीं कर सकते, तो ये सिर्फ केवल स्कूल या कॉलेज के टाइम पे नहीं परंतु जिंदगी भर आपके जीवन में रहेगा। यू आर नॉट अलोन, दिस इज वन रियलाइजेशन। सेकेंड, कि आप के जीवन में यह हमेशा रहेगा। और तीसरा है रिकॉग्नाइज में कि हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस अपने प्रॉब्लम से, अपने सिचुएशन से, अपने सर्कमस्टांसेस से, अपनी परिस्थितियों से भागना पसंद करते हैं और वे सोचते हैं कि अगर वे इस चीज़ को टेम्पररी स्विच ऑफ कर दें, टेम्पररी इसको फ्लाइट मोड में डाल दें, तो उन्हें लगता है कि उनके लाइफ का प्रॉब्लम्स या ये जायंट्स चला जाएगा। पर सच बात यह है कि यह जायंट्स और ताकत रूप से आपके जीवन में और आपको कमज़ोर और खोखला बनाता है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहला विषय को हम जानें, रिकॉग्नाइज करें या मान लें कि हम प्रत्येक के जीवन में वो जायंट्स हैं और हम अकेले नहीं हैं। यह हमेशा हमारे जीवन में रहेगा और हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते। और इसलिए दूसरा विषय बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है रियलाइज दैट द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। एक कहानी है जो हम सभी जानते हैं, दाऊद और गोलियत की कहानी, जिसमें हम जानते हैं कि दाऊद एक साधारण सा एक बालक था। He was just a youth and Goliath was more than 9 feet tall। एक दानव के दैत्य के निमित्त था। और वो बाइबल में कहता है, पहला शमूएल की किताब में, कि दाऊद बोलता है कि यह युद्ध परमेश्वर का है और परमेश्वर ही हमें उनसे पराजित करेंगे। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बल, अपने शक्ति, अपने ताकत के द्वारा हम इस बैटल को ना लड़ें, क्योंकि जब भी हम अपनी ताकत, अपने सामर्थ्य, अपने बुद्धि से हम लड़ते हैं तो हमेशा हम पराजित हो जाते हैं और हम विनाश की ओर बढ़ते हैं। दाऊद के जीवन में हम देखने पाते हैं कि क्या वो क्लासिक एग्जाम्पल था कि वो परमेश्वर पर निर्भर रहता था। और इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जाने और सीखें दाऊद के जीवन से कि वो एक चरवाहा था और वो जब अपने भेड़ बकरियों की रक्षा रखवाली करता था तो बहुत से पशु, बहुत से जानवर उसके भेड़ की आक्रमण करते थे और दाऊद अपने भेड़ों को उन पशुओं से बचाता था और वो वहां विजयवंत होने के द्वारा वो गोलियत से सामना कर पाया। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम भी अपने जीवन में उस पास्ट विक्ट्रीज को हम रिमेम्बर करें, हम रियलाइज करें कि परमेश्वर ने कैसे कैसे हमें दुविधाओं से, समस्याओं से, कष्टों से परमेश्वर ने हमें विजयवंत दिलाया है। और जब हम वो करते हैं तब हम जानने पाते हैं कि परमेश्वर कितना महान है। हम जानने पाते हैं कि शायद हम अकेले अपने सामर्थ्य से नहीं परंतु परमेश्वर की तरह हम उसमें विजयवंत होने पाएंगे। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर दिन अपने आप को याद दिलाएं, एवरी डे वी रिमेंबर द पास्ट विक्ट्रीज लाइक डेविड, और वो हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हम अपने जीवन में हर दिन अपने जायंट्स को हम फेस करने पाते हैं। किसी ने कहा है कि इफ वी फोकस ऑन जायंट्स वी विल फॉल, बट इफ वी फोकस ऑन गॉड देन जायंट्स विल फॉल। यदि हम अपने जायंट्स पे फोकस करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स पे, अपने समस्याओं पे फोकस करते हैं तो हम पराजित होते हैं, परंतु अगर हम अपने परमेश्वर पे फोकस करते हैं तो हमारी सारी समस्याएं, जायंट्स, वो पराजित होती हैं। और यही बहुत ज़रूरी है कि हम
अपनी समस्याओं पे, अपने जायंट्स पे फोकस ना करें, अपने पास्ट विक्ट्रीज पे फोकस करें और परमेश्वर को हम इस चीज़ के लिए हम धन्यवाद दें। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर दिन बहुत बार बहुत मुश्किल होता है जायंट्स पे फोकस करना, और इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने मन को रिन्यू करना, अपने आप को समझाना कि परमेश्वर ने कैसे कैसे अद्भुत कार्य किए हैं। रोमियो की किताब 12:2 में परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार के सदृश मत बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने के कारण। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बाकी सांसारिक लोगों की तरह अपने प्रॉब्लम्स, अपने जायंट्स पर फोकस ना करें, परंतु परमेश्वर पे फोकस करें। अपने पास्ट विक्ट्रीज को हम याद करें, उन्हें हम एक एक करके गिनती करें, उन्हें हम लिखें, और वो हमें कॉन्फिडेंस देगा परमेश्वर पर कि हम अपने जायंट्स को हर दिन हम फेस करने पाएंगे। तो पहला विषय था रिकॉग्नाइज दैट वी ऑल हैव जायंट्स। दूसरा विषय था कि रियलाइज दैट द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। और आखिरी विषय है, और तीसरा जो विषय है, जो पॉइंट है, वो है अटैक योर जायंट्स। अपने जायंट्स का हम आक्रमण करें। हम दाऊद की कहानी में अगर हम फिर से जाएं तो हम देखने पाते हैं कि गोलियत इजरायलियों के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, वो अपनी सीमा को लांघ रहा था। अगर मैं और आप ऐसे गोलियत को अपने जीवन में आने दें और हम कुछ ना करें, तो वो हमारे जीवन में धीरे धीरे और हानि की ओर बढ़ेगा और हमें और कमजोर करेगा, और हमें वो अंत में वो हम पर पूरी तरह डोमिनेट करके हमें विनाश की ओर ले जाएगा। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जायंट से भागे नहीं, उसके साथ हम किसी तरह का समझौता ना करें, परंतु हम उसका आक्रमण करें। और बाइबल बताती है कि जैसा गोलियत आक्रमण करने के लिए नजदीक आया, वैसा गोलियत भी और शीघ्र आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। और आक्रमण करने के लिए बहुत ही जरूरी है 2 विषय। पहला है प्रार्थना करना अपने हर एक जायंट्स के लिए, चाहे वो इनसिक्योरिटी हो सकता है, चाहे वो फियर हो सकता है, चाहे वो प्राइड हो सकता है, चाहे वो लस्ट हो सकता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने से रोक सकता है। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के नजदीक जाएं, अपने आप को तैयार करें, और उस सारे विषयों को जो जायंट्स है उसे हम परमेश्वर के नजदीक लेके आए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है प्रिपेयर। दुख की बात यह है कि बहुत से लोग प्रिपेयर नहीं होते हैं, बहुत से लोग तैयारी नहीं करते हैं उस अटैक को करने के लिए, और शायद उन्हें पता भी नहीं है कि किस तरह से हमें अटैक करना है। रिसेंटली मैं एक बुक को पढ़ रहा था, द पर्पस एंड पावर ऑफ लव एंड मैरिज, और उसमें ऑथर या लेखक कहते हैं कि हम एक अपने करियर को सक्सेसफुल बनाने के लिए 20 से 25 साल हम कठोर परिश्रम करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम तैयारी करते हैं ताकि हमारा करियर सक्सेसफुल होने पाए। पर उसी तरह प्यार के रिश्ते को या विवाह के रिश्ते को, जिसे हमें जीवन भर साथ रहना है, उसके लिए हम बहुत ही कम तैयारी करते हैं। और देखा जाए तो 20 और 25 साल में अपने करियर को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमने शायद 100 से भी ज़्यादा बुक्स को स्टडी किया होगा, पर प्यार के रिश्ते के लिए शायद हमने कोई एक बुक को भी स्टडी नहीं किया होगा। और इसलिए मेरे प्रिय बहुत अनिवार्य है कि हम उस गलती को ना करें, हम प्रे करें, हम प्रिपेयर करें अपने आप को अटैक करने के लिए, क्योंकि हम अपने जायंट्स को अगर अटैक नहीं करेंगे तो वो हमें अटैक करेगा और वो हमें पराजित करेगा। तो आइए हम आज के इस फेसिंग द जायंट्स पे जो 3 विषय उसको हम रिवाइज करें। सबसे पहला था कि रिकॉग्नाइज दैट वी ऑल हैव जायंट्स, सेकंड रियलाइज दैट द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड, और थर्ड अटैक योर जायंट्स। मैं विश्वास करता हूँ कि हर दिन परमेश्वर आपको एक विजयवंत बनाना चाहते हैं, आपको एक योद्धा बनाना चाहते हैं, और परमेश्वर नहीं चाहते कि आप एक पराजित जीवन व्यतीत करें। यूहन्ना 10:10 कहता है कि चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, परंतु यीशु मसीह आए आपको बहुतायत का जीवन देने के लिए, ताकि आप हर दिन उस आनंद, हर दिन उस विजय को, हर दिन उस शांति को, हर दिन उस मनोरंजन को, अपने जीवन में एडवेंचर को आप एक्सपीरियंस करें। और यह तभी हो सकता है जब अपने जायंट्स को आप हर दिन आप फेस करें। और मैं विश्वास करता हूँ कि यह संभव है परमेश्वर के द्वारा, जब अपने जीवन को, अपने मन को, अपने आप को हम तैयार करेंगे परमेश्वर के लिए। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर के पास प्रार्थना के द्वारा जाएं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद इस फेसिंग द जायंट्स के बारे में बताने के लिए कि निश्चय हम सबों को वो जायंट्स फेस करना पड़ता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम अकेले नहीं हैं इस बैटल के लिए। हम धन्यवाद देते हैं
कि आपने हमें तैयार किया है प्रभु। सहायता कीजिए ताकि हम अपने आप को तैयार करें प्रार्थना के द्वारा। हम जायंट्स पे फोकस ना करें परंतु आप पे फोकस करें और हम विश्वास करने पाए कि आप हमारे जायंट्स को पराजित करेंगे प्रभु। धन्यवाद जितने भी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, हर एक के जीवन को आप ब्लेस कीजिए, हर एक को आप और मजबूत बनाइए, योद्धा बनाइए प्रभु जी, ताकि जितने भी तरह की इनसिक्योरिटीज है, जितने भी तरह की डर है, भय है, एडिक्शन है, लस्ट है, जो कुछ भी जायंट्स है जो उसे आपकी ओर बढ़ने से रोक रहा है प्रभु, वो यीशु के नाम के द्वारा दूर होने पाए। धन्यवाद प्रभु इस विषय के लिए। धन्यवाद हमें फिर से रिमाइंड करने के लिए कि आप कलवारी क्रूस पर विजयवंत हुए थे और हम भी विजयवंत होने पाते हैं जब हम आपके साथ हम चलने पाते हैं प्रभु। सारा आदर में और आपको देते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीर्वाद करें। थैंक यू सो मच भैया फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल मैसेज। आई होप कि आप सबों को बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला पर्सनली। एंड हियर वी आर एंडिंग आवर मंथली फेलोशिप विद अ प्रेयर। सभी को जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सभी को आज का ये फेलोशिप बहुत ही अच्छा लगा है। तो आइए इस फेलोशिप को अभी समाप्त करते हैं एक छोटे से प्रेयर के साथ। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें हेल्प की इस फेलोशिप में आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु उन सभी चीज़ों के लिए जो आपने हमारे लिए की प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सभी के लिए जो अभी इमरजेंसी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस, हेल्थ वर्कर्स, उन सभी के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु उन स्टेट्स के लिए जो अभी जूझ रहे हैं प्रभु, उन सभी के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सभी बाहरी देशों के लिए जो अभी जूझ रहे हैं इन समस्या से प्रभु। तो ये छोटा सा विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यहीं पर ही हमारा मंथली फेलोशिप खत्म होता है। इफ यू हैव एनी प्रेयर रिक्वेस्ट लेट अस नो इन आवर कमेंट सेक्शन। हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप घर पे ही रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।